This is class 9th exercise 2.5 and today we are looking at question number 10th factorization. We have to factorize 27y cube plus 125z cube. बाइनोमियल है, क्यूब दिखाई पड़ रहा है तो क्या करने का है आप लोगों को इस फॉर्मेट में लेके आना है a cube plus b cube. What is the format? a cube plus b cube. That is the identity used here. Identity used. क्या होता है ये? It is a plus b, that is the first bracket, and in the second bracket it comes a square plus b square, and for plus there is a minus of ab. So what we can write 27y cube, it is 3y whole cube. 125z cube could be written as 5z whole cube. That is the first step. आपने 27y क्यूब को a क्यूब के फॉर्मेट में लेके आए हैं और 125z क्यूब को आप 5z होल क्यूब के फॉर्मेट में लेके आए हैं. Next thing is to add them in a bracket 3y plus 5z. That is a plus b. a कौन है हमारे पास 3y और b कौन है हमारे पास 5z. That is a plus b in the first bracket, and in the second bracket we have to square them. That is पहले हमारे क्या करना है 3y का स्क्वायर करेंगे, then we have to do the square of b, that is 5z, and then in the next bracket what we have to do, okay, we have to take a negative of ab, that is a कितना था 3y और b कितना है 5z, and इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. Leave it as it is. Move to the next one. 3 square is 9 and y square is y square plus 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 z square and minus 3 5 times is 15 y into z, and that is your answer. What we have done, we had found two factors of 27y cube plus 125z cube. The first factor is 3y plus 5z and the second factor is 9y square plus 25z square plus 125yz. Let's see our second part of this 10th question. 64m cube minus 343n cube. So again इसका फॉर्मेट क्या रहेगा a cube minus b cube. क्या किया जाता है, पहले a minus b किया जाएगा. a minus b, without the cubes you have to subtract them. In the next bracket what you have to do, you have to take the square of a plus square of b, and for minus there is a plus of ab. That is the identity we are going to use here. So see, 64m cube could be written as 4 है ना. 64 किसका क्यूब होता है 4 का. 4 into 4 into 4 is 64. So that is a cube. a कौन है हमारे पास 4m. 343 is the cube of 7n whole cube. ठीक हो गया. That is the first step. आप इसको a cube minus b cube के फॉर्मेट में लेके आए हैं. अब in the first bracket what you have to do, you have to subtract them 4m minus 7n, and in the next bracket you have to take the square of a. यहाँ पे a कौन है हमारे पास 4m का स्क्वायर. In the second you have to take the square of b, that is 7n का होल स्क्वायर, और स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव्स नहीं हो सकते हैं तो a स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स है ना, ध्यान रखिएगा, a इंटू बी. a कौन है 4m और b कौन है 7n. यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है जनरली. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ओनली ab, और ये किसका ab होगा प्लस का ab होगा. As it is, 4 का स्क्वायर is 16m square, 7n square, that is 49n square, and plus 4 7 times is 28m into n, and that is the answer. Again two factors, a cube minus b cube के दो factors होते हैं. First is a minus b for a minus sign, and then a square plus b square and plus of ab. तो आपका second bracket में सभी positive आने वाले हैं. In question number 15th we have to determine the possible length and breadth for the given area. ये एरिया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, हमें बताना है कि इसकी पॉसिबल लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितना होगा. दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो सिंपली ही इज नॉट आस्किंग अस टू फैक्टराइज इट, बट इनडायरेक्टली ही इज सेइंग टू फैक्टराइज, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक को जब भी फैक्टराइज करते हैं हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं. वी गेट 2 फैक्टर्स व्हेन वी फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो उसमें से एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा और दूसरा ब्रेथ हो जाएगा. देखते हैं कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल
कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 25 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म 12 है ना, इसको हमें फैक्टर्स करना है। या तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 25 कुड बी रिटन एज 5 5 ज़ा 25 एंड 12 कुड बी रिटन एज 4 3 ज़ा 12। अब हमें करना क्या है, हमें इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनके दो फैक्टर्स आए जिसका एडिशन 35 हो जाए, जिसका एडिशन 35 हो जाए। हमने इससे पहले काफ़ी किया है इन क्वेश्चंस को, फैक्टराइजेशन में किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किया है, तो ये आना चाहिए आपको। Arrange them in such a way that their addition gives 35. 5 4s are 20, 5 6s are 15. Okay, that is this 5 4 times is 20 and 5 3 times is 15. तो 20 plus 15 कितना होगा? 35 हो गया। तो हमें अपना दो फैक्टर्स मिल गए। 25 इंटू 12 करने पे हमें दो फैक्टर्स ऐसे मिल रहे हैं जिसका एडिशन कितना है? 35 आए। सो हाउ कुड वी राइट इट? जस्ट लीव 25a स्क्वायर एज इट इज माइनस a प्लस 12 एज इट इज। हमने सिर्फ 35 को ब्रेक करना है, और कैसे ब्रेक करना है? 20 प्लस 15 में, 20 प्लस 15। I hope it is clear to you. We had splitted 35 into two factors such that their multiplication is 25 into 12. मल्टीप्लाई करते हैं, 25a स्क्वायर माइनस 20 इंटू a is 20a minus plus will be minus 15a and plus 12. That is the next step. Next step, take common from 25a square and minus 20a. So 5a is your common. 5 5 times is 25. a square में से a बाहर निकल गया है, कॉमन है, तो एक a will remain inside the bracket minus 5 4 times is 20. a तो ऑलरेडी बाहर पे है कॉमन, माइनस को हम ऐसे लिखते हैं। और क्या कॉमन दिख रहा है? 3, यस। 3 5 times is 15, a बचेगा। एंड देखिए माइनस साइन आपने बाहर निकाला है तो अंदर माइनस करेंगे तब जाके माइनस माइनस प्लस आएगा। एंड 3 4 times is 12। या फिर आप ऐसे समझिए, आपने माइनस साइन कॉमन निकाला है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगेन 5a minus 4 and 5a minus 4, the bracket is common, so what left, that is 5a minus 3. So that was our area, yes. So what we can say, length into breadth आ गया, तो our possible length is 5a minus 4 and possible breadth कितनी हो जाएगी? 5a minus 3. लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग टू फैक्टराइज इट। देखना है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू आर गिवन एरिया, एरिया आपको दे रखा है। अगेन हमें इसको फैक्टराइज करना है और बताना है लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगा। सो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, किसका? 35 और 12 का। मीन्स 35 इंटू 12 को ऐसे अरेंज करिए कि इसका सब्ट्रैक्शन 13 आ जाए। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 5 ज़ा 35 और 12 को लिख सकते हैं अगेन 4 3 ज़ा 12। अगर मैं 5 को 4 से ले जाऊँ तो 5 4 ज़ा 20 एंड 7 3 ज़ा 21। देखते हैं 20 एंड 21, तो इनका सब्ट्रैक्शन तो आपको नहीं देगा, 13 तो नहीं देने वाला है, तो ये हमारे फैक्टर्स फेल हो गए। अगेन लेट्स फैक्टराइज इट प्रॉपरली। तो क्या मैं 5 को 3 के साथ ले जा सकता हूँ? देखते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 7 4 ज़ा 28, और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। माइनस का 13 आ रहा है, तो इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा 28 माइनस 15 इज 13। सो हमने क्या किया? हमने 35 और 12 को ऐसे फैक्टराइज किया कि इसके भी दो फैक्टर्स आ गए, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 4 ज़ा 28। और जब मैंने 28 माइनस 15 किया है तो कितना मिल गया? 13 मिल गया। So see how you are going to solve it. 35y square as it is plus 13 को स्प्लिट कर रहे हैं, y as it is minus 12 as it is। तो 13 की जगह क्या डालना है आपने? 28 minus 15, 28 minus 15। अगेन 35y square plus 28 into y is 28y minus 15 into y and minus 12। नेक्स्ट वन 35 और 28 में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 7, और y स्क्वायर और y में y कॉमन, तो 7 5 टाइम्स इज 35 एंड y तो कॉमन था ही, y बचेगा। 7 5 35, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। 7 4 टाइम्स इज 28, y ऑलरेडी कॉमन है आपके पास, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और 3 कॉमन निकल रहा है, तो y प्लस 3 5 ज़ा 15 ना, 3 5 ज़ा 15 एंड y एज इट इज प्लस 3 4 ज़ा 12। अगेन व्हाट इज कॉमन हियर? 5y प्लस 4 एंड 7y minus 3, so that is our area. So what we can say, possible length is 5y plus 4 and possible breadth is 7y minus 3, and that is our answer.
ये चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पे, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिवाइज करिए, पीछे जाइए, चैप्टर को समझिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आइडेंटिटीज़ इसमें आपने सीखी हैं, इसमें से सिर्फ एक आइडेंटिटी आपकी हटी है, दैट इज़ योर 8th आइडेंटिटी विच सेज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस आइडेंटिटी को आपको नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13th 14th, इनको भी नहीं देखना है हमें। तो 15 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। Again, volume is given 3x square minus 12x and he is saying in the question to find the possible length, breadth and height, that is a cuboid, है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज समथिंग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपके 3 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखते हैं कॉमन क्या दिख रहा है। तो 3x कॉमन है, बचेगा x माइनस 3 4 ज़ा 12, दैट्स इट। 3 इंटू x माइनस 4, दैट इज अवर पॉसिबल लेंथ, दैट इज अवर पॉसिबल ब्रेथ एंड दैट इज अवर पॉसिबल हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट्स इट। इतना ही करना है इसमें, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। इन द सेकेंड पार्ट ही इज अगेन सेइंग वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो देखिए पहले कॉमन निकाल लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। 12, 8 एंड 20 में कॉमन कितना है? दैट इज 4, यस। k एंड k, अगेन k इज कॉमन, y स्क्वायर y एंड नथिंग, तो y इज नॉट कॉमन, है ना। तो बस दैट्स इट, 4k कॉमन है, क्या बचेगा? 4 3 टाइम्स इज 12 एंड यहाँ पे बचने वाला है y का स्क्वायर प्लस 4 2 टाइम्स इज 8 एंड k कॉमन है, y बचेगा माइनस 4 5 टाइम्स इज 20, k इज ऑलरेडी कॉमन, तो ये हो गया। सो व्हाट वी कैन से 4 इंटू k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, अगेन दैट इज अवर पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रेथ एंड पॉसिबल हाइट। हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसको हम फैक्टराइज कर सकते थे। 5 3 टाइम्स इज 15, 15 को हम 2 में स्प्लिट कर सकते थे, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 3 टर्म्स आ चुके हैं। फर्स्ट इज 4th पॉसिबल लेंथ, k इज योर पॉसिबल ब्रेथ एंड हाइट इज योर दिस ब्रैकेट, दैट्स इट। तो ध्यान से करिएगा, दैट वाज अवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये सेकेंड चैप्टर समझ में आया था तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।